At 16 weeks, she is a known case of mitral stenosis. What history points you will take from the patient? Okay. Uh, after mutual introduction and confirming the giving details, I will ask from the patient missing biodata, including her name, age, occupation, merit for parity, last baby born, last menstrual period. I will address her concerns and set agenda. I will ask about her duration of diagnosis of her condition, and is she using any medication, compliance with the medication, last visit to her doctor, and she has done pre-pregnancy counseling or not, and if she is having any complication due to disease like mitral stenosis, arrhythmia, deep venous thrombosis, or stroke. And then I will further inquire about her symptoms. Is she having shortness of breath and any restriction in doing physical activities, or edema? And then I will ask about her past medical history of diabetes, hypertension, cardiac disease, autoimmune disease, thrombophilias, family history of diabetes, hypertension, cardiac disease, the thrombophilias, DVT, and past surgical history of concern, and her allergy history, drug history, smoking history with concern, and her BMI, and also her gynecological history of contraceptive method she was using, or history of pap smear and HPV vaccination, and also about her history of a past obstetrical history, parity, any antenatal, intrapartum, postpartum complication, and mode of delivery, and outcome of pregnancy, and her current pregnancy history. Is she sure of dates, and is this was a planned or unplanned pregnancy? How she confirmed pregnancy? History of any nausea, vomiting, PV bleeding, rash, fever, sore throat in first trimester, and dating scan was done or not? Did she took folic acid during first 3 months? And as now she is of 16 weeks pregnancy, uh, is she using iron supplements or not, and anything she want to tell me about her condition, the patient. Oh, very good, doctor. Specifically, history was very good. You have to ask about the current symptom: shortness of breath, chest pains, leg swelling, dyspnea, जी arrhythmia, PND. जी Okay, at this and there is MS at 16 weeks. So you have to rule out cardiac failure and जी infective endocarditis, fever, sore throat, joint जी pain. Okay, that's all. जी The keywords are there. And so your patient is doctor, known case of MS since 10 years, and she's at 16 weeks. She's primi gravida, and now she came to you at 16 weeks, conceived with treatment. Pregnancy was planned. Pre-pregnancy counseling was done, and now she is on taking medical treatment in the form of aspirin and um, doctor, she is also taking lower molecular weight heparin due to the valve replacement. ये मैं खुद ही बना रही हूँ. Okay, due to the valve replacement. So now she is admitted due to the shortness of breath on at ordinary activity with pedal edema जी since 1 week. जी. सही. So these are the complaints. Examine your patient. Okay. On examination, I will do general physical examination, calculate her vitals, BP, pulse, temperature, respiratory rate, oxygen saturation, look for pelarness, edema, jaundice, and raised JVP. And also, I will do chest examination, cardiovascular examination. On per abdominal examination, just want to look for the fundal height. Okay, very good, doctor. On examination,
Blood pressure 110 is 110/50, pulse rate 100 irregular, and there is diastolic murmur. Mid diastolic murmur is positive. Okay, and examination पे fundal height is um, not appreciated, 16 weeks size uterus. ठीक है. And pedal edema, Dr. Pedal edema is positive. Pedal edema positive. Sahi. Hmm. Now, I want investigation. Hmm. For which I need baseline investigation, CBC with date for hemoglobin, platelets, and TLC count, blood group with Rh factor, midstream urine analysis for protein, glucose, pus cells, and hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HIV antibodies, and her random blood sugar. Also, specific investigation I want ECG, chest X-ray, and echocardiography. ओके डॉक्टर, एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें मिस की थी आपने. लेट मी ऐड, यू हैव टू आस्क अबाउट जेवीपी इन कार्डियक जी पेशेंट. जो भी पूछा ओके, था. पूछा था. ओके, मैंने नहीं देखा. सो यू हैव टू डू चेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द एपिक्स बीट, फॉर इट्स लोकेशन एंड इट्स करेक्टर. ठीक है. करेक्टर नॉर्मल है या टैपिंग है. एनी मर्मर एंड पीडल एडिमा. I am repeating it again. You will examine her pulse for rate, rhythm, volume. ये बोलना है. JVP should be measured. Apex beat for its location and character. Normal or tapping. Any murmur and then pedal edema. So the positive finding मैंने आपको बता दी है. अब आपने ECG मांगनी है डॉक्टर, इस तरह नहीं मांगनी. सो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस और नॉर्मल, उसको नॉर्मल रखते हैं हम. सो सिंपल लेके चलते हैं. सो ECG फॉर रेट, रिदम एंड एनी एक्सिस डेविएशन आपने इस तरह मांगनी है. सो ECG इज डॉक्टर नॉर्मल. ECG इज नॉर्मल एंड एकोकार्डियोग्राफी फॉर डॉक्टर Echocardiography for chamber of heart, valve area, pulmonary arterial hypertension, and ejection fraction. Very good, very good. So, doctor, echocardiography is showing the valve area, mitral valve area less than 1 centimeter with ejection fraction 50%. जी. सही. और चेस्ट एक्सरे पे मैडम पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, कार्डियोमेगाली. Doctor, no pulmonary edema. No pulmonary सही. edema is there. Okay. And for fetus, I want dating scan. For Dating fetus, scan no. for number of fetus, viability, CRL, and knuckle translucency. So doctor is baby is normal. According to the सही. scan, she's at baby is at 16 weeks. सही. और बस अभी मैनेजमेंट. नहीं डॉक्टर, आप मैनेजमेंट नहीं, इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं कुछ. डॉक्टर, कार्डियक पेशेंट की जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ECG तो करानी है फॉर रेट, रिदम, एनी एक्सिस डेविएशन, एकोकार्डियोग्राफी फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, माइट्रल वाल्व एरिया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और एनी पेरिकार्डियल एफ्यूजन. सो एकोकार्डियोग्राफी इस तरह मांगनी है. उसमें मैंने आपको फाइंडिंग बता दी है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर एरिया, इजेक्शन फ्रैक्शन 50% है. LFTs RFTs बेस लाइन ज़रूर कराएं. सीरीज अब अगर वो डाईयूरेटिक्स ले रही है डॉक्टर, अब ये तो नहीं ले रही थी, तो फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर करवाने हैं आपने. ठीक है. अब चूँकि लोअर मालिकुलर वेट हेपरिन ले रही है, तो एक बेस लाइन PTA PTT वैसे तो हम नहीं करवाते, लेकिन नॉर्मली मॉनिटरिंग तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास बेस लाइन PTA PTT होना चाहिए. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये दैट्स ऑल. अब हमने क्या करना है. सो आई विल काउंसल माई पेशेंट दैट शी इज़ हैविंग अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी विद स्फीयर माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस एंड वाल्व रिप्लेसमेंट. वैसे नॉर्मली होती वॉल्व रिप्लेसमेंट. ठीक है. ये मैंने वॉल्व रिप्लेसमेंट खुद ऐड किया है ताकि वो मैं लोअर मालिकुलर वेट हेपरिन दे दूँ. सो आई विल इन्वॉल्व मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट and in and CCU department
and anesthetist and senior gynecologist. I will tell the patient about fetal-maternal risk. What are the risks? Maternal risk are atrial fibrillation, thrombosis, heart failure, infective endocarditis, pulmonary edema, heart failure ही हो गया. And fetal risk are IUGR, IUD, preterm birth, ये पूरा पूरा बोलिएगा. न्यूनेटल ICU एडमिशन, ये हो गया. सो अभी आपने क्या करना है? आई विल एडमिट माई पेशेंट इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट. High flow oxygen, 100% oxygen will be given, diuretics, vasodilators, and beta blocker as heart rate is irregular. Then I will monitor क्या करना है आपने? साइन एंड सिम्टम्स. अच्छा, प्रॉपर आई थिंक मैंने नहीं बोला. साइन एंड सिम्टम्स, वाइटल्स एंड इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन. ठीक है. सो ये आपका ट्रीटमेंट था. सो यू विल डिस्चार्ज योर पेशेंट इफ पेशेंट इज स्टेबल. ठीक है. when patient is stable and as she is at NEHA classification 3, you can discharge it when classification NEHA classification 2 or 1. जो 3 and 4 है you have to admit it till 3 and 4. जब 1 और 2 हो जाएगी तो आप उसे OPD लेवल पे मॉनिटर कर सकते हैं. ठीक हो गया गलत? 16 वीक्स पे हो गया. इसके बाद जब पेशेंट स्टेबल होगा, अच्छा, यू हैव टू काउंसल योर पेशेंट इफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स. यू कैन हैव, अब इसकी तो मैंने पहले ही सर्जरी कर दी थी ना, बट यू कैन हैव ए सर्जिकल ऑप्शन आफ्टर 20 वीक्स. ठीक हो गया. यू विल डिस्चार्ज योर पेशेंट व्हेन द पेशेंट इज स्टेबल विद द रेड फ्लैग साइंस एंड red flag signs of shortness of breath, pedal edema and chest pain. You will ask to avoid exertion and आप 2 वीकली एंटीनेटल विजिट पे इसको रखेंगे, 2 वीकली. ठीक हो गया गर्ल्स. अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, 2 वीकली एंटीनेटल विजिट. अब इसका क्या करवाना है हमने? नॉर्मली स्कैन विद यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? कार्डियक पेशेंट है, एंटीनेटल विजिट्स करवाएंगे, हाई रिस्क पेशेंट है. and you on each visit you will check her vitals, oxygen saturation, ask about her sign and symptoms, compliance of the medications and क्या करेंगे? side effects, any side effects. So at 20 to 22 weeks we will have an anomaly scan with uterine artery doppler for पूरा बोलना है, SD ratio, RI and PI पूरा बोलिएगा, and estimated fetal weight. ठीक हो गया. उसके बाद 2 वीकली एंटीनेटल विजिट्स पे रखेंगे पेशेंट को एंड 26 वीक से ग्रोथ स्कैन स्टार्ट हो जाएंगे. एंड इसकी मंथली एको होती है. जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनकी मंथली एको होती है, ये ज़हन में रखिएगा. डेट्स ऑल. अब यही पेशेंट डॉक्टर आपके पास आ गई है 32 वीक्स पे, 32 वीक्स में एंड 32 वीक्स पे एंड शी हैज सीवियर MS and no sign and symptoms. Now proceed. And she is on lower molecular weight heparin. She is taking lower molecular weight heparin therapeutic dose, aspirin और बाकी जो भी हार्ट फेलियर की मेडिसिन है, बीटा ब्लॉकर ले रही है, वो डायूरेटिक्स ले रही है. सो प्रोसीड. I will advise her admission in our obstetric wards, and will do her vital monitoring, input-output record, and fetal-maternal well-being. And patients who are severe, who is having severe mitral stenosis, we will admit her till the delivery. Very और ठीक है. जी. And then till the delivery, what will be the mode of delivery? इसको continue and mode we will at 36 weeks we will discuss mode, time, place of delivery, analgesia, assessment, and intrapartum postpartum care. As she is having severe mitral stenosis, our mode of delivery will be elective cesarean section. elective cesarean section severe MS में. जी. बाकी लोग क्या कहते हैं? Therapeutic dose of low molecular weight heparin, we will stop heparin before 24 hours before surgery, and on the day of surgery we will, after taking consent, prepare patient for anesthesia, optimize her health,
we will do her cesarean section, but we will make sure that we have bed arranged in CCU and NICU, and after steroid cover we will do cesarean section. And फिर madam, on after cesarean section, after delivery of placenta, we will give her diuretics. We will shift her to CCU. We'll do her vital monitoring, and we will be vigilant for PPH, and we will give her concentrated synprosinone. And she will be assessed by cardiologist, and we will start her low molecular weight heparin after 12 hours of cesarean section. And फिर then फिर हम मैडम डिस्चार्ज करेंगे अगर पेशेंट स्टेबल हो गई तो। हम contraception अर्ली मोबिलाइजेशन, जी, वी विल एडवाइज हर कॉन्ट्रासेप्शन, effective contraception, breastfeeding, and adequate hydration, early mobilization. ओके और डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, अच्छा ठीक है, ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन आपने ध्यान रखना है पेशेंट थोड़ा सा टिल्ट रहे, ठीक है, और वेज ज़रूर रखना है। इसके अलावा VTE असेसमेंट बाद में होगी, विजिलेंट फॉर PPH, एंड इसके अलावा क्या होगा, आपने बाद में वाइटल्स रिकॉर्ड, इनटेक आउटपुट, इसको आपने रिकवरी में कहाँ भेजना है, इसको HDU में भेजेंगे। इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, इन्हांस रिकवरी प्रोग्राम बोल दें, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, इंटरमिटेंट चेस्ट ऑस्कल्टेशन, वाइटल मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि इसको पल्मोनरी एडीमा का रिस्क है पोस्टनेटली, ठीक है। देन रीस्टार्ट लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आफ्टर 24 आवर्स फॉर 6 वीक्स। कार्डियोलॉजिकल जिस्ट रिव्यू भी करवाना है। कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन देंगे, PPI-UCT, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, ठीक है। सो डॉक्टर, हियर आर सम क्वेश्चंस। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ रही हूँ। पेशेंट इज टेकिंग वारफरीन एंड शी केम्स टू यू इन लेबर, शी इज ऑन वारफरीन, व्हाट विल you do? Any cardiac patient on warfarin and came to you in labor, जी, what will you do? ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं। The indications to give infective endocarditis prophylaxis, indications, जी। मैम, severe mitral stenosis, अच्छा, patient with valve replacement, and patient with rupture of membranes. अच्छा, वो GBS का था डॉक्टर, वो GBS प्रोफाइलैक्सिस, ओके, हाँ। मैम फिर भूल गई, मुझे याद नहीं था। आप सुने, आपने इसको नहीं देनी थी। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स, अब इसमें तो मैंने लगा दिए थे खुद ही। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स, प्रीवियस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री हो, कम्प्लेक्स साइनोटिक हार्ट डिजीज़, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, एमाइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक हो गया। सो आपने डोज बताएं, व्हाट इज़ द डोज डॉक्टर? मैम 3 ग्राम ऑफ एम्पिसिलिन है, फॉलोड बाय 1.5 ग्राम मिलीग्राम ऑफ जेंटामाइसिन एंड 500 मिलीग्राम ऑफ एम्पिसिलिन अंटिल डिलीवरी 6 आवरली। डॉक्टर ये आप GBS का नहीं बता रही? 2 ग्राम IV स्टैट देना है, एमोक्सिसिलिन और 120 mg जेंटासिन, और फिर आपने 6 आवर्स बाद IV एमोक्सिसिलिन रिपीट करना है सिर्फ एक दफ़ा 500 mg, ठीक है। वो आपने GBS का बता दिया सारा। सो अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने कि पेशेंट आया है, वो वारफरीन ले रहा है किसी भी वजह से और लेबर में आ गई है, टर्म पे है, टर्म पे कर दें या 36, व्हाट विल यू डू? आपने कहा कि आई विल गिव FFPs, आपने बोला जी मैम। और क्या दिया, विटामिन K दे दिया। अब आगे लेबर का क्या करना है? मैम आगे इसमें लेबर केयर गाइड 1 to So whenever the patient is on warfarin and she comes in labor, give FFPs and cryoprecipitate and bring the PT-INR up to 1.5. Vitamin K IV 10 mg देंगे and do emergency cesarean section. IM क्यों नहीं देना? क्योंकि IM से hematoma cause होगा, warfarin पे है। To avoid intracranial hemorrhage of the baby. Okay.
patient taking lower molecular weight heparin and needs emergency cesarean section. Cesarean section डॉक्टर गुलिन का एंटीडोट देंगे, प्रोटामिन सल्फेट और FFPs एंड डू द सिजेरियन सेक्शन. इसमें आप सिजेरियन ही करेंगे. Whenever the patient is on warfarin, no cesarean section, no cesarean section. ठीक है. So why we start unfractionated heparin before labor या before delivery? Why? Because उसकी short half life है and easy to reverse. अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन का रिवर्सल क्या होता है डॉक्टर? मैडम सेम प्रोटामीन होता है. हाँ, लेकिन लोअर मॉलिक्यूलर वेट का FFPs होता है. पिछले क्वेश्चंस में गलत हो गया था. ठीक है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का FFPs से रिवर्स होता है, अनफ्रैक्शनेटेड का प्रोटामिन सल्फेट है. जी अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट चीज़ आपने उसको कब स्टॉप करना होता है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को, और कब रीस्टार्ट करना होता है? जी मैडम 6 to 12 आवर्स में रीस्टार्ट करते हैं ना ये. और स्टॉप कब करना है? मैडम अनफ्रैक्शनेटेड तो मैडम हम चला भी सकते हैं ड्यूरिंग लेबर बिकॉज पेशेंट इज हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो नहीं वो डॉक्टर, चल भी सकते हैं. उसको 6 आवर बिफोर रोकें और 6 आवर बाद आप स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, 4 to 6 आवर्स पहले एंड 4 to 6 आवर्स बाद. ठीक है. अच्छा डॉक्टर, व्हाट इज़ द इंटरवल, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन स्टॉपिंग द वारफरिन एंड नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी? एट लीस्ट इंटरवल. मैडम 10 days बिफोर मतलब डिलीवरी हम स्टॉप करते हैं एटलीस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ द पीपीएच. PPH नहीं है डॉक्टर, इंट्राक्रेनियल हेमरेज का रिस्क ज़्यादा है. ठीक है, बेबी के. ठीक है, बेबी हाँ, इंट्राक्रेनियल वीक्स का गैप होना चाहिए बिटवीन द वारफरिन एंड 10 days आप ठीक है एस्टिमेट 2 weeks है. ठीक हो गया. सो व्हाट एल्स? अच्छा, इफ़ योर पेशेंट इज़ इन एक्टिव स्टेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड यू आर डूइंग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी फॉर अ कार्डियक पेशेंट, हाउ यू विल manage the patient during labor? What will be the management of labor? वो वाला केस हमारा ख़त्म हो. In a patient with severe MS, you will go for cesarean section delivery under regional anesthesia. So मैं आपसे इंट्रापार्टम केयर पूछ रही हूँ ऑफ कार्डियक पेशेंट. जी consultant lead unit and ma'am consultant cardiologist and MDT should be involved during labor. And ma'am जो है ना fluid overload should be avoided, syntocinon given in the concentrated form, and ma'am emergency trolley should be ready, ergometrin should be avoided, and second stage should be shortened by using the instrumental delivery, and the third stage should be actively managed, and then ma'am baby should be handed over to pediatrician. So the one of the most important point you left, मैडम ऑक्सीजन प्रॉप अप मैंने बताया नहीं, वो भी करना है मैडम. कॉन्टीन्यूस CTG भी होगी डॉक्टर इसकी. चेस्ट ऑस्कल्टेशन एवरी 30 मिनट्स. पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करें, ऑक्सीजन अवेलेबल हो. कार्डियक मेडिकेशन आपने कंटिन्यू रखनी है ड्यूरिंग लेबर, चाहे वो 12 आवर्स रह रही है, TDS जो भी है. और क्लैक्सेन को देखना है, इंश्योर करना है कि अगर वो ले रही है तो वो स्टॉप हो. एंड रिव्यू द पेशेंट फॉर एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस. रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड वो आपने बता दिया. गुड पेन रिलीफ होना चाहिए. मेंटेन पार्टोग्राफ. लेफ़्ट लेटरल उन्होंने बोल दिया था. एंड डॉक्टर आपने कंसनट्रेटेड सिंटो इन द लेबर दिया. देन आपने उसकी परवजाइनल एग्जामिनेशन लिमिटेड रखनी है. शॉर्टन द फर्स्ट स्टेज में लेफ़्ट लेटरल्स, शॉर्टन द सेकंड स्टेज, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज. नो अर्गोमेट्रिन, यानी 1 2 3 हर एक का एक पॉइंट है, थर्ड का 2 पॉइंट्स है. एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज एंड नो अर्गोमेट्रिन. शिफ्ट द पेशेंट टू, आपने कोशिश ये करनी है कि जब वो फुल डायलेटेड हो तब उसको शिफ्ट करना है टेबल पे विद द वेज अंडर राइट बटक. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि यू शुड गिव द इंजेक्शन लासिक्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड. ठीक हो गया.
Keep patient under observation for 72 hours postnatally and review with cardiologist. यही याद कर लेंगे कि इट इज़ 40 और 60 यूनिट्स इन 100 ml आपने देनी है इन द नॉर्मल सेलाइन माइक्रो पीरियड्स में ओवर 8 आवर्स एंड 8 माइक्रोडोप्स पर मिनट. थैंक यू डॉक्टर सादिया, थैंक यू. सो दिस वाज, ये मुझे नहीं पता था. अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं. चलिए, हमने इस पेशेंट को क्या स्टार्ट करवाना है. फ़र्ज़ करें पेशेंट वारफरिन पे थी बिफोर प्रेगनेंसी. पोस्टनेटली हमने पेशेंट को कैसे ओवरलैप करवाना है. मैडम पोस्टनेटली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट करेंगे ना 6 to 12 आवर्स में. ओके. And then on the day 3rd to 5th we will start the warfarin till her INR is 1.5 to 2.5. Then once INR normal is achieved, then madam we will stop the low molecular weight heparin and continue the warfarin. ओके. तो हाउ यू विल मोनीटर कि आपको INR जब हम ओवरलैप करेंगे तो PT INR डेली मॉनिटर करेंगे ना, और उसके बाद जब वो वारफरिन पे हो जाएगी आप हेपरिन छोड़ देंगे देन 6 वीकली. ओके डॉक्टर. सो वेन एवर यू आर ओवरलैपिंग इट, you have started warfarin on the day 3 to 5, तो you will do PT-INR daily till 2.5 तक आपका PT-INR चला जाए. then you will stop heparin and you will do PT-INR monitor. वारफरिन के साथ मॉनिटर करना होता है ना डॉक्टर 6 वीकली. ठीक है. लोअर मालिकुलर वेट हेपरिन की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, और अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की आपने क्या मॉनिटरिंग होती है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की. मैडम एपीटीटी से करते हैं ना. APTT से करते हैं. ठीक है. APTT वीकली टिल ट्रीटमेंट कंटिन्यू. ठीक है. और प्लेटलेट भी मॉनिटर करने होते हैं हाई रिस्क में. ओके. यस मैम. एंड अब आपका PT-INR लेस देन 2.5 आ रहा है. इसका क्या मतलब है कि आपने डोज को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है. वन 1.5 से कम कह दें. 1.5 से कम आ रहा है, आपका जो टारगेट था उससे कम आ रहा है. डोज शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड. 2.5 से 1.5 से कम आने का मतलब है क्या करना है, आपने डोज को इंक्रीज़ करना है. इंक्रीज करना है ना मैडम. इंक्रीज़ करना है, हाँ. और अगर आपका 2 पॉइंट यानी टारगेट से ज़्यादा आ रहा है देन डिक्रीज़ द डोज. ठीक हो. Yes. द टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया वेरी इंपॉर्टेंट. हीमाटोमा बन जाएगा. GA देंगे. ठीक है ना. एपिड्यूरल भी नहीं देना डॉक्टर, उसको आपने GA देना है क्योंकि हीमाटोमा एपिड्यूरल से, और वो तो आपने देना ही नहीं है. ठीक है. वारफरिन पे पेशेंट लेबर में आ गई है, GA देंगे और सिजेरियन करेंगे. ठीक है. सो दिस वाज